If you're a NEET dropper and going to start your NEET 2026 preparation, then this video is for you. In this video, I'm going to tell you all the mindset that you should have before starting your preparation, the strategy that you should follow, the exact roadmap and the timetable that you should follow so that you can get closer to your selection. So if you're new to the channel, hi, my name is Gargi Vajne and currently I'm a final year MBBS student at KGMC Lucknow. So before coming here, I was a 2 years dropper after my class 12 and I secured an All India rank of 2341 with a score of 663 out of 720 marks in NEET 2021 examination. So without any further delay, let's begin today's video. So point number one that comes is mindset. Now this is the most basic thing before beginning your preparation, the mindset that you should inculcate before starting your preparation. This is the most important thing because it is your mindset. It is always in your brain that you win first before making it a reality. So you need to inculcate some mindset shifts before starting your NEET 2026 preparation so that you move closer to your selection. So the first thing that you need to understand is no matter if it could not get selected in NEET 2025 examination, it does not mean that you are a failure. It does not mean that you are at zero level because no dropper ever in the NEET history was ever at zero level. Droppers are always at some or the other level above zero because they are always starting from some experience. They are never starting from zero. So always remember that you always have an upper hand because you have some experience of the NEET examination. So just inculcate this in your mind that you are starting from some experience. You are never starting from zero. The second mindset shifts that you should have is you should not be crying over the problems. This NEET 2026 examination preparation will be hard. It will be tough. You will find many problems, but you should find solution to those problems. You should never cry on your problems because if you are someone who's always solution oriented, you will move forward in the direction of your goal. But if you are someone who's always taking the problems to your heart, who's always focusing their entire energy on the problem and then crying over the problem, then you will never be able to move forward. Whatever problem that you encounter in this journey, in the last 5 months that are left for this examination, you need to be very solution oriented. Not only your academic problems, but all types of problems. Suppose if you are someone who's not able to focus for 3 hours straight, then you don't have to cry over that problem that you're not able to sit for 3 hours straight. You're not able to increase your attention span to 3 hours straight. If you will just cry over this problem, no one will magically come and improve your preparation or improve your focus or attention span. You have to be the one who has to work hard and who has to find a solution to it. Suppose if you're not able to sit for 3 hours straight, you have to increase your focus little by little. You have to increase your focus span 5 minutes from the previous focus span that you are already having. With this method, you will move forward. But if you sit and just cry and blame the system or blame the examination for this, then you are not going to move forward. If you have to move forward in your preparation, you need to be very solution oriented. Have a positive outlook towards it and be very solution oriented. The third mindset shifts that you should be having is never give up attitude. Look, you will face immense number of problems. You will face hardships. The journey will get very uncomfortable. You will feel very demotivated when you will not be able to score good marks. You will feel very hard to study because not always, you will not be in a mood to study always, but you have to be the one who does not quit even when it gets very hard, because you need to understand, because the moment it gets very uncomfortable is the exact very moment that most of the NEET aspirants quit. And if you do so, you will be the one who's from the crowd. But if you just pass through it now, you will definitely differentiate yourself from the crowd, because to become the ones who get selected, you need to work that extra that others are not doing. So the moment it gets uncomfortable, don't quit at that moment. That is the exact very moment that the universe is testing you. Your gods are testing you that are you even made for this examination or not. So you do not have to quit at that very moment. Also just understand that हो सकता है कि just the moment it gets very uncomfortable and the moment you are about to quit your preparation is the very moment that is really very near to your destination. So if you are able to move forward, तो फिर तुम अपने destination के बहुत करीब पहुंच जाओगे. But if you just quit at that moment, तुम इतना आगे आके भी अपनी destination तक नहीं पहुंच पाओगे. So just have this attitude that you will not quit no matter what until your NEET examination. The three mindset that you should inculcate in your mind, in your subconscious minds, are you need to have a never give up attitude. You need to be very solution oriented. Whenever you are encountered with any type of problem, don't just cry over the problem. Don't blame other people or just don't blame the system. Just find solution to your problems. And the number three,
that you are always starting from some experience, you have some experience, you are never starting from zero. Now coming to point number 2, that is planning. Now how you will make a plan for your preparation is that first of all you have to make a very big list of all the chapters on a single sheet of paper that are in your NEET 2026 syllabus. After you have made that list of physics, chemistry and biology, उसके बाद ना क्या करना है कि उसके बाद जो भी चैप्टर्स की तुमने थ्योरी और क्वेश्चन प्रैक्टिस इस साल कंप्लीट कर लिया है, उस चीज को, उस वाले चैप्टर को स्ट्राइक ऑफ कर लेना है. बट जस्ट मेक श्योर दैट यू हैव डन द थ्योरी एंड यू हैव ऑल्सो डन द क्वेश्चन प्रैक्टिस. सिर्फ थ्योरी पढ़ने से तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है? यू कैन मार्क माई वर्ड्स ऑन दिस. यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस टू गेट सिलेक्टेड, क्योंकि मेन एग्जाम पर भी ना तुम क्वेश्चंस ही प्रैक्टिस कर रहे होगे. तो the more number of questions you practice, the more variety of questions you practice is the very moment that you will move near to your selection. So practicing question is the most important thing that you have to be doing in your NEET preparation in the last 5 months that are left. हो भी सकता है कि तुमने थ्योरी अच्छे से ना भी पढ़ी हो, बट जस्ट डोंट स्किप द क्वेश्चन पार्ट, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उन्होंने थ्योरी तो पूरी पढ़ी होती है बट दे आर जस्ट सो इनकंसिस्टेंट विद द क्वेश्चन प्रैक्टिस. एंड बिलीव मी यार, अगर तुमने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करी है ना तो मान ही नहीं सकते कि तुमने वो चैप्टर कंप्लीट कर लिया. सो जस्ट स्ट्राइक ऑफ ओनली दोस चैप्टर्स जिसकी तुमने दोनों चीजें कंप्लीट कर ली हैं, थ्योरी एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस, and just leave the remaining chapters as it is. And just what you have to do is, जब तुमने ये सारे chapters mark कर लिए हैं, you have to stick this list in front of you. जहां पर भी तुम पढ़ते हो तुम्हें उसके सामने अपने डेस्क के सामने चिपका लेनी है. इससे क्या होता है कि जब भी तुम सारे चैप्टर्स एक जगह पे लिखते हो तो तुम्हें ना मेंटली पता रहता है कि तुम कितनी पीछे हो और अब तुम्हें धीरे धीरे करके ऊपर बढ़ना है, ठीक है? योर टारगेट फॉर नेक्स्ट 2 to 3 months शुड बी टू स्ट्राइक ऑफ ईच एंड एवरी चैप्टर फ्रॉम दिस लिस्ट, ठीक है? मत ध्यान दो कि यार तुम्हारी कोचिंग वाले किधर चल रहे हैं, तुम्हारा सिलेबस किधर चल रहा है, तो तुम अगर कोचिंग के बराबर आ जाओगे तो तुम्हारा सब हो जाएगा. कोई भी चीज पर ध्यान मत दो. तुम्हारा ध्यान सिर्फ इस चीज पे होना चाहिए कि तुम्हें जल्दी से जल्दी ये सारे के सारे चैप्टर्स को स्ट्राइक ऑफ करना है, इसकी थ्योरी और क्वेश्चन प्रैक्टिस कंप्लीट करना है तुम्हें, ठीक है? सोर्स फिक्स करना बहुत जरूरी है कि तुम कहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हो. क्वेश्चन प्रैक्टिस और थ्योरी दोनों के लिए एक सोर्स फिक्स करो कि यहाँ से तुम वीडियोस देखोगे या यहाँ से तुम थ्योरी पढ़ोगे और यहाँ से तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है? तो तुम्हें अपना एक सोर्स फिक्स करना है. एंड जस्ट इमेजिन कि तुम एक 0 लेवल पर हो और एक एक चैप्टर जब तुम्हारा स्ट्राइक ऑफ होते जाएगा ना, तुम धीरे धीरे ऊपर बढ़ते जाओगे, ठीक है? ठीक है, अब ये जब तुमने लिस्ट बना ली और तुमने अपने सामने लगा ली, अब यार इन सारे चैप्टर्स, जो चैप्टर्स तुमने मार्क नहीं करे हैं, उनमें से ना कैटेगराइज कर लो कि स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स तुम्हारे कौन से और वीक चैप्टर्स तुम्हारे कौन से हैं, फ्रॉम ऑल द सब्जेक्ट, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी, ऑल 3. And just make sure that you fix your source, because if you don't fix your source ना, you will be like literally wandering here and there कि तुमने यहाँ से questions कर लिए, यहाँ से तुमने theory पढ़ लिए, यहाँ से तुमने इसका ये कर लिया. क्योंकि अगर तुम ये एक जगह पे नहीं करके रखते हो या फिर कोई एक defined source नहीं करते हो ना, तो you will ऑलवेज बी कंफ्यूज्ड और तुम्हारा ना बहुत टाइम वेस्ट होता है कि ये जज करने में कि तुम्हें कहाँ से सारी चीजें करनी है. और जब लास्ट में तुम रिवाइज करने के लिए आओगे ना, तो यू विल फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट कि सारी चीजें इधर उधर स्कैटर्ड है और फिर तुम अच्छे से रिविजन नहीं कर पा रहे हो लास्ट के 1 month में, ठीक? हाउ टू कंसाइज ऑल ऑफ योर नोट्स एंड हाउ टू मेक स्मार्ट शॉर्ट नोट्स दैट यू आर एबल टू रिवाइज एवरीथिंग in the last 1 week at least 3 to 5 times. I've completely explained in one of my videos. You can go and check that video out. I'll also provide the link in the description box. Do not miss that video because it's a very important video. If you're someone who has already done 80 or 90% of the syllabus, then you can go and start making your short notes the way I have told in that video. It will really be very helpful for you all. Now, after you have fixed your source, after you have after you have marked, after you have made a list of all the chapters of NEET 2026 syllabus, after you have striked off some chapters and some of them are remaining, and after you have fixed your source, how you have to study will all come into strategy part. So now moving to the strategy. So now point number 3 is strategy. Now यार we need to understand that किसी भी ड्रॉपर की ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि दे जस्ट फील कि उन्हें सब आता है, बट जब वो क्वेश्चंस करने जाते हैं ना तो उनसे बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं बनते एंड दे फील वेरी डिमोटिवेटेड कि यार लास्ट ईयर तो पढ़ा था, तब हमारा स्ट्रॉन्ग चैप्टर था और अब हमारा वीक हो गया, ठीक है? तो दे आर नॉट एबल टू डिफरेंशिएट कि उन्हें क्या चीज आती है और क्या चीज नहीं आती. तो इसी चीज का सोल्यूशन के लिए द वे यू हैव टू स्टडी इज रेट्रोग्रेड स्टडी. दैट इज यू हैव टू सॉल्व योर क्वेश्चन बैंक फर्स्ट एंड देन यू हैव टू मूव टू योर थ्योरी. जब तुम अपना क्वेश्चन बैंक पहले करते हो ना, तो तुम्हें एग्जैक्टली वो सारी चीजें पता चल जाती हैं कि कहाँ पे तुम्हें ज्यादा फोकस करने की जरूरत है और कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ पे तुम्हें कम फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि ऑलरेडी तुम्हें वो आते हो, तुम उनके क्वेश्चंस कर पा रहे हो. तो टू आइडेंटिफाई दिस थिंग फॉर अ ड्रॉपर इज वेरी इंपॉर्टेंट कि उन्हें क्या चीज आती है और क्या चीज नहीं आती है. हम ये सिर्फ सोचकर ये बता नहीं सकते कि हमें ये वाला टॉपिक आता है और ये नहीं आता. जब वो अपने ब्रेन को थोड़ा सा फोर्स करते हैं समझने के लिए कि हमें क्या चीज आती है क्या चीज नहीं आती,
तो फिर जितने भी क्वेश्चंस तुम सॉल्व कर पाए वो सारे टॉपिक्स तुम्हें आते हैं, और जितने तुम नहीं कर पाए, तुम्हें डिफिकल्टी हो रही है, तो वो सारे टॉपिक्स उस पर्टिकुलर चैप्टर के तुम्हारे वीक है। तो आफ्टर यू हैव सॉल्व द क्वेश्चन बैंक, पहले क्वेश्चन बैंक सॉल्व करना है, उसके बाद तुम्हें थ्योरी पे जाना है, ठीक है। और जब तुम थ्योरी पे जाओगे तो यू ऑलरेडी नो कि एग्जैक्टली कौन से वाले टॉपिक्स पे, कौन से वाले थ्योरी वाले पार्ट पे तुम्हें ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि उनका क्वेश्चन तुमसे नहीं बना। अगर तुम इस तरीके से करते हो ना, तो तुम्हारा रिटेंशन भी इंक्रीज होता है, और यू आर वेरी प्रोडक्टिव इन वट एवर यूर स्टडिंग। क्योंकि यार देखो, थ्योरी पढ़ के क्वेश्चन करना इज वेरी इजी, बट बिफोर द थ्योरी अगर तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो ना, नो मैटर कि तुमने लास्ट ईयर वो चीज पढ़ी है, ठीक है, the only thing that matters is you just force your brain to recall everything। और जब तुम ये करते हो ना, तो फिर तुम्हें exactly पता चलता है तुम्हें कौन सी चीज आती है, तुम्हें कौन सी चीज नहीं आती। Now coming to the second strategy that you should be using is active recall। आफ्टर तुमने रेट्रोग्रेड स्टडी से कोई भी चैप्टर पढ़ लिया, जब तुम इसे रिविजन पे आओगे अब, तो रिविजन के टाइम पे तुम्हें इसे एक्टिवली रिकॉल करके देखना है। तुम्हें अपनी पूरी किताब कॉपी बंद कर लेनी है, और तुम ना रिकॉल करने की कोशिश करोगे कि इस वाले चैप्टर पे, इस जगह पर, इस वाले कॉन्सेप्ट में ये सारे एल्गोरिथम होता है जिससे हम आंसर तक पहुंचते हैं, ये वाले थ्योरी में ये सारे पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी के इस वाले डायग्राम में ये सारे लेबलिंग्स दे रखे हैं, एनसीईआरटी के इस वाले पेज पे ये सारी चीजें दे रखी हैं। आई अंडरस्टैंड कि बहुत बहुत ईजी नहीं होगा एक्टिवली रिकॉल करना, बट अगर तुम ये करते हो तो तुम्हारी ना इससे रिटेंशन पावर बहुत इंक्रीज होती है, और एक्चुअली में तुम मेन डे एग्जाम पर भी ना रिकॉल ही कर रहे होंगे, क्योंकि तुम्हारे पास सामने नोट्स नहीं होंगे, तुम्हारे पास सामने कुछ भी नहीं होगा, और तुम्हें ना रिकॉल करके ही आंसर तक पहुंचना है। तो अगर तुम इस चीज की प्रैक्टिस अभी से करते हो, तो तुम्हारा मेन डे ना काफी अच्छे से इजिली निकल जाता है। नाउ कमिंग टू द थर्ड पॉइंट इन स्ट्रैटेजी, दैट इज you have to plan everything whatever you are going to study in the entire week on the previous Sunday, ठीक है। तो संडे को सबसे तुम ना सारी चीजें प्लान कर लोगे कि तुम्हें इस वीक में ये सारी चीजें करनी है फॉर 6 डेज का ना, हर रोज का तुम बहुत ही स्पेसिफिक शेड्यूल बनाओगे। ये पर्टिकुलर चैप्टर का क्वेश्चन बैंक करना है, ये पर्टिकुलर चैप्टर की थ्योरी पढ़नी है, ये पर्टिकुलर चैप्टर का रिव्यू करने क्वेश्चंस, ठीक है। तुम बहुत ही स्पेसिफिकली हर एक दिन का फॉर 6 डेज ओनली अंटिल सैटरडे तुम एक शेड्यूल बनाओगे, एंड यू हैव टू लीव संडे। संडे इज फॉर गिविंग टेस्ट, हर संडे को तुम्हें टेस्ट देने हैं, एंड यू कैन इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ योर टेस्ट व्हेन यू नियरर टू योर एग्जामिनेशन, ठीक है। और संडे को अगर कोई चीज इस पूरे वीक में से कोई चीज रह जाती है, तो वो सारी चीज तुम्हें संडे को कवर करनी है। एंड एवरी संडे फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स यू नीड टू बी गिविंग फुल लेंथ टेस्ट, ठीक है। अब यार जरूरी नहीं है कि तुम 11th-12th पूरी कंबाइंड दो, ठीक है। अगर तुमने मेजरली 11th का सिलेबस कंप्लीट कर रखा है, तो तुम 11th फुल लेंथ टेस्ट दो, ठीक है। और अगर तुमने 12th का मेजरली कर रखा है, तो तुम 12th फुल लेंथ टेस्ट दो। इससे क्या होगा ना यार, इससे ये होता है कि तुम ना बहुत जल्दी जल्दी जो टॉपिक्स में स्विच आता है ना, जैसे कि कोई एक चैप्टर में पूछा हुआ है एनएलएम का क्वेश्चन, सेकंड चैप्टर में ग्रेविटेशन का क्वेश्चन, थर्ड चैप्टर में एसएचएम का क्वेश्चन, तो वो जो स्विच करने का टाइम है ना, जब तुम्हारे कम हो जाएगा, तो तुम्हारी ना स्पीड बढ़ती है। और ना जब तुम फुल लेंथ टेस्ट करते हो ना, तुम ऑन अ होल जज कर रहे होते हो कि कौन सी चीज एक्चुअली में इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए, कौन सी चीज नहीं है। तो फुल लेंथ टेस्ट के ना बहुत सारे फायदे होते हैं, ठीक है। और लास्ट के कुछ टाइम पे इफ यू आर स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन, जैसे आई वाज द वन, तो फिर ना फुल लेंथ टेस्ट करने का ही फायदा होता है। इससे ना तुम्हारा एक अलग सा फियर होता है ना, तो एक अजीब सा फियर होता है ना, वो भी फियर चला जाता है। और ना मोस्टली बच्चे ये सोचते हैं कि जब हम सारी चीजें रिवाइज कर लेंगे, हम अभी पार्ट टेस्ट देते हैं, और फिर जब हमारे पार्ट टेस्ट कंप्लीट हो जाएंगे, तब हम जब पूरा रिवाइज कर लेंगे, तब हम फुल लेंथ टेस्ट देंगे। इट्स अ मिथ, ठीक है, नहीं कर पाते हैं, ठीक है। इवन आई वाज द वन जो अपने फर्स्ट ड्रॉप ईयर में ऐसे ही सोचती थी, ठीक है। हम हर एक टेस्ट के लिए पूरी प्रिपरेशन कभी कर ही नहीं पाते हैं। तो फिर फ्रॉम द डे दैट यू आर वाचिंग दिस वीडियो, फ्रॉम द नेक्स्ट संडे स्टार्ट गिविंग फुल लेंथ टेस्ट, ठीक है। इन माय सेकंड ड्रॉप ईयर अटेम्प्ट मुझे ये पता था कि यार चाहे कितने भी मैं पार्ट टेस्ट दे लूं, उससे मेरा कोई फायदा नहीं होगा। एक तो पार्ट टेस्ट में क्या होता है ना, कि पार्ट टेस्ट में यार बहुत ही लिमिटेड चैप्टर्स आ रहे होते हैं, ठीक है। तो लोगों को लगता है कि अगर हम लिमिटेड चैप्टर्स को रिवाइज कर लेंगे, तो एटलीस्ट हमारे वो चैप्टर्स प्रिपेयर हो जाएंगे। बट एक्चुअली में ना, जब हम किसी भी कोचिंग के पार्ट टेस्ट देते हैं ना, उसमें कुछ ऐसे सवाल भी पूछे जाते हैं जो कि शायद से नीट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट क्योंकि वो सिर्फ पार्ट टेस्ट का टेस्ट है, तो फिर वो डाल देते हैं उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी। तो यू नीड टू बी स्मार्ट इनफ कि यार जब वो क्वेश्चंस पूछा ही नहीं जाता, तो हम क्यों करें। तो दैट्स व्हाई गिविंग फुल लेंथ टेस्ट हैज अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स, ठीक है। सबसे पहला बेनिफिट तो ये होता है, तुम्हारा एक फियर चला जाता है कि यार फुल लेंथ टेस्ट अब आ जाए ना, हम तो कर लेंगे। उससे ना तुम्हें एक ओवरव्यू मिल जाता है कि अगर पूरी 11th में से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उठाए जाएंगे, तो एक्चुअली में कौन से टॉपिक्स का कौन सा वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है जो कि मेन डे एग्जाम में आ सकता है। इस स्ट्रैटेजी से काम करोगे ना, तो यू विल बी लाइक मूविंग वेरी स्मार्टली, एंड हार्डवर्क तो तुम कर ही रहे हो, ठीक है। तो दैट्स व्हाई गिविंग फुल लेंथ टेस्ट इज एडवाइजेबल एट दिस मोमेंट। इन माई सेकंड ड्रॉप ईयर अटेम्प्ट मैंने कोई भी पार्ट टेस्ट नहीं दिया था। पार्ट टेस्ट को मैं ना मिनी टेस्ट की तरह सॉल्व करती थी, मतलब 1 घंटे का टाइमर लगा के बायो कर लिया, 1 घंटे का टाइमर लगा के केमिस्ट्री कर लिया, और 1 घंटे का टाइमर लगा के फिजिक्स कर ली, वो भी रैंडम कभी भी। मतलब जरूरी नहीं है मैं 3 घंटा बैठ के सॉल्व कर रही हूँ और मैं रिवाइज कर रही हूँ, पूरा प्रिपेयर कर रही हूँ उस टेस्ट के लिए, मैं ऐसा कभी नहीं करती थी, ठीक है।
मैं उनको मिनी टेस्ट की तरह देती थी, और मैं बस आई यूज टू फाइंड ओनली फुल लेंथ टेस्ट, या तो 11th का फुल लेंथ, और लास्ट में आते आते तो आई जस्ट सॉल्व फुल लेंथ टेस्ट। लास्ट के 4 या 3 महीने में मैं सिर्फ फुल लेंथ टेस्ट देती थी, मैंने कोई भी पार्ट टेस्ट दिया ही नहीं अपने फाइनल ड्रॉप ईयर अटेम्प्ट में। नाउ आफ्टर यू गिव द टेस्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट दैट कम्स इज एनालिसिस। ये लिटरली मैं हर वीडियो में बताती हूँ और मैं अभी भी बताऊंगी। द ओनली वन थिंग जिससे तुम अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर सकते हो इज rectifying your mistakes that you did in the previous test, not only academically but every type of mistakes, every type of problems that you encountered in your previous NEET mock test. If you just rectify those mistakes and make this promise to yourself that you will just not repeat these mistakes in the upcoming test, that is the only method that you will able to increase your marks in the final NEET examination. So if you want to increase your marks, पहले देखो कि तुमने पिछले टेस्ट में क्या गलती करी। जब तुम इन गलतियों को सुधार लोगे, और जब तुम ये बहुत सारे टेस्ट में करते जाते हो, तो एक पॉइंट ऐसा आता है जब तुमने मैक्सिमम अपनी गलतियां सुधार ली होती है, तो फिर तुम अपने सिलेक्शन के बहुत करीब पहुंच जाते हो। तो एनालिसिस इज लिटरली so important. Your NEET mock test is literally a waste of time, money, energy, effort, everything if you just don't analyze your mock test. ये मैं अपने हर वीडियो में बताती हूँ, और मैं हर वीडियो में बताती भी रहूंगी नीट एग्जाम तक, क्योंकि दिस इज द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट नीट एस्पिरेंट्स ये गलत करते ही करते हैं। वो सिर्फ अपना स्कोर देख लेंगे। अगर कोचिंग वाले तुम्हें एक हफ्ते में 3 टेस्ट दे रहे हैं, तो वो 3 टेस्ट कर तो देते हैं, बट उनको एनालाइज ही नहीं करते हैं। तो एनालिसिस के लिए आफ्टर स्पेंडिंग 3 आवर्स गिविंग द टेस्ट, एनालिसिस के लिए तुम्हें 5 से 6 घंटा निकालना ही निकालना है। वो सारे सब टॉपिक्स को रिवाइज करना है बहुत अच्छे से। जो सारे कॉन्सेप्ट्स, जो सारे सब टॉपिक्स तुम्हारे टेस्ट में आए, जो 180 कॉन्सेप्ट्स तुम्हारे आए, यू हैव टू मेक श्योर कि अगले टेस्ट में इन 180 कॉन्सेप्ट से तो क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं। यू नीड टू फाइंड आउट क्रिएटिव वेज टू दिस, यू नीड टू फाइंड आउट solutions to those problems, and not only academic problems का तुम्हें solution मिल भी जाएगा, but all types of problems। जरा सोचो, रूट कॉज पर जाकर सोचो कि तुम्हारी क्या गलती होती है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को तो तुम गलत कर देते हो। ठीक है, मे भी हो सकता है कि किसी ने तुमसे एग्जाम से पहले कोई ऐसी बात बोल दी हो जिसकी वजह से तुमने बहुत सारी गलतियां कर दी जो तुम नॉर्मली नहीं करते हो। तो यू हैव टू मेक श्योर कि अगली बार से जब भी तुम नीट मॉक टेस्ट देने जाओगे, तुम किसी से बात ही नहीं करोगे। ठीक है, तो ऐसी बहुत टाइप की गलतियां होती है। मे बी शायद से तुम नीट कोई भी मॉक टेस्ट देने से पहले तुम बहुत ज्यादा हैवी मील ले लेते हो, कार्बोहाइड्रेट रिच मील ले लेते हो, जिसकी वजह से तुम अपने एग्जाम पे फोकस ही नहीं कर पाते। तो नेक्स्ट टाइम से मेक श्योर कि तुम ऐसी कोई हैवी मील ना लो। ठीक है, तो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स जो कि तुम्हें एनालिसिस से ही पता चलेंगे। अगर तुम सिर्फ एक टेस्ट दो, उसके मार्क्स देख लो, फिर तुम एनालाइज ही ना करो, तो इट्स लिटरली अ वेस्ट ऑफ गिविंग योर टेस्ट। ठीक है, तो एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ टू डू कंप्लीट एनालिसिस, एवरीथिंग आई हैव एक्सप्लेन्ड इन वन ऑफ माय वीडियोस। It will be a gold mine for you if you're a very serious NEET aspirant. Go and check that video out. I'll also provide that video's link also in the description box. So how should your everyday look like is I'll be telling in the exact roadmap that you should follow, the timetable that you should follow every day. So you need to understand, last 5 months are left, and you should just make it a point that you are spending at least 10 to 12 hours studying. क्योंकि जब तुम 10 से 12 घंटा बैठोगे तो एटलीस्ट तुम 6-7 घंटे तो पढ़ ही रहे होंगे। ठीक है, तो फिर जस्ट मेक इट अ पॉइंट दैट यू आर एटलीस्ट सिटिंग फॉर 10 to 12 hours studying for your examination, and you need to give that time to this examination, because this examination is not a piece of cake. People are literally working very hard. तो अगर तुम अपनी प्रिपरेशन को टाइम नहीं दोगे तो तुम्हारा सिलेक्शन बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो आई एम सपोजिंग दैट यू आर गिविंग 12 hours to your preparation every day. So how you have to study is you have to study in blocks. 3 hours के तुम्हें स्टडी ब्लॉक्स में पढ़ना है। जैसे कि अगर तुम सुबह अगर तुम 6 o'clock उठे, जस्ट मेक इट 5:45 उठे, ब्रश वगैरह करने के बाद 6 to 9 you have to study. Then after 9 you take 1 hour's break. ठीक है, 10 to 1 you study, then 1 hour break, 2 to 5 you study, then 1 hour break, 6 to 9 again you study. जब तुम ऐसे ब्लॉक्स में पढ़ते हो ना, तो 3 घंटे की सिटिंग प्रैक्टिस होती है तुम्हारी। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बच्चे अगर तुम 3 घंटा बैठना सीखोगे नहीं ना, तो तुम मेन एग्जाम पे नहीं बैठ पाओगे, इतना फोकस नहीं कर पाओगे। तो अभी से तुम्हें 3 घंटा बैठने की प्रैक्टिस होनी ही चाहिए। ठीक है, तो दैट्स वाई स्टडी इन ब्लॉक्स। ठीक है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि 5-6 घंटे लगातार पढ़ लेंगे, और फिर उसके बाद दे गेट सो टायर्ड कि उसके बाद दे जस्ट फॉरगेट अबाउट द स्पैन ऑफ टाइम दे आर स्पेंडिंग ऑन रिलैक्सिंग देमसेल्व्स। ठीक है, और फिर उनके 3-4 घंटे ऐसे ही निकल जाते हैं। सो इंस्टेड हर एक 3 घंटे के सेशन के बाद 1 से 1.5 घंटे का ब्रेक लो, फिर एक 3 घंटे का सेशन लगाओ, फिर 1 से 1.5 घंटे का ब्रेक लो। ठीक है, तो इससे तुम्हारी ना स्टडीज बहुत ऑर्गेनाइज्ड भी रहेंगी। और अगर तुम 4 सेशन एक दिन में कर लेते हो, तो यू आर ऑलरेडी स्टडिंग फॉर 12 hours इन अ डे, राइट। सो जस्ट इस पूरे शेड्यूल को, इस पूरे 12 hours को 4 ब्लॉक्स में डिवाइड कर दो, और हर ब्लॉक को 3 hours का सेशन दे दो। अब यार इट विल डिपेंड इफ यू आर अ नाइट पर्सन और यू आर अ मॉर्निंग पर्सन। ठीक है, जस्ट मेक दिस अकॉर्डिंग टू योर शेड्यूल।
And just make sure the 12 hours that you're spending on studies, 6 hours you will be like preparing your strong chapters, and 6 hours you will be preparing your weak chapters. Now why do I tell कि strong chapters को भी उतना ही same time दो जितना तुम weak chapters को दे रहे हो, क्योंकि यार अगर तुम उनको टाइम नहीं दोगे ना तो eventually वो जो strong chapters तुम्हारे हैं वो भी weak हो जाएंगे. तो जो हमने first list में मार्क करे थे अपने strong और weak chapters, you have to divide your schedule in such a way कि तुम अपने सारे के सारे strong chapters को enough time दे रहे हो कि that they remain strong. ठीक है, ऐसा ना हो जाए कि तुम यार सिर्फ अपने वीक चैप्टर्स को टाइम दे रहे हो तो इवेंचुअली वो तो वीक से मॉडरेट लेवल पे आ गए, बट जो तुम्हारे स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स थे वो तुम्हारे वीक चैप्टर्स बन गए. तो यू नीड टू स्पेंड सफिशिएंट टाइम फॉर दो स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स ऑल्सो. ठीक है, तो अपने 6 आवर्स को तो अपने 2 स्टडी ब्लॉक्स को स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स के लिए रखो, दो स्टडी ब्लॉक्स को वीक चैप्टर्स के लिए रखो. कोई भी अगर तुम्हारा पार्ट मिस हो जाता है तो जस्ट यू हैव योर संडे टू कवर इट अप. ठीक है, और इफ यू आर एबल टू कंप्लीट एवरीथिंग इन अ वीक तो फिर संडे को थोड़ा सा रिलैक्स rejuvenate for next week and just schedule everything for next week. On Sundays, you have to be giving your test. You have to relax. You have to rejuvenate for next week. You have to schedule your next week. And जो 180 जो तुम टेस्ट दोगे उसका एनालिसिस भी संडे को ही कंप्लीट करना है. ठीक है, संडे को जो 180 कॉन्सेप्ट जो तुम्हारे टेस्ट में आए हैं वो कॉन्सेप्ट इतने स्ट्रांग हो जाने चाहिए कि नेक्स्ट टाइम अगर वो कॉन्सेप्ट आएंगे you just don't get those questions wrong. So yeah, that's all for the video. I just want to end this video with this note that just try to give your 1000% to this examination, because even if you're not able to crack this examination, at least you won't have the guilt that you did not do the maximum that you could do. So I have to make an announcement. If you're a NEET aspirant and want one-on-one personal guidance from me myself, then my mentorship program is open. You will get mindset that you should have so that you move closer to your selection, the tips, tricks, hacks and various strategies and revision schedule based on your strengths and your weaknesses, and obviously an accountability partner, that is me myself. So if you're a serious NEET aspirant, do not forget to message me directly on my WhatsApp number. The WhatsApp number and the further details of the mentorship are given in the pinned comment and also in the description box. So if you're a serious NEET aspirant, go and message me right now. And if you found this video useful, do not forget to hit that subscribe button, and do not forget to hit the like button and comment down whether you are ready to give your 1000% to this examination or not.